Hi there, my champions. Well, you all are already aware that the first session of JEE Main 2023 exam will be conducted in January. The registration forms are already out. While some of you all are very comfortable with filling the registration forms, there are, on the other hand, tons and tons of students who find filling this form extremely difficult and confusing. And I understand that entirely. And that is why I decided to come by and share with you a detailed step-by-step procedure to fill the registration form for the upcoming JEE Main 2023 exam in January. Now, 3 things that you have to take care of before you fill the form. Number 1, when you sit to fill the form, please make sure that you are sitting in a quiet room. There should be no noise, no disturbance, no distraction. Why? Because you will have to enter very important and critical details in the form. Okay, and that is why you will be required to stay focused and extremely attentive. Are you understanding? Also, people, the JEE team, they've already mentioned that the correction window this time will not open, so you cannot afford to make any mistakes or commit any errors. Number 2, after listening to the step-by-step procedures, still if you have any doubt or any query, any confusion, please put that in the comment section below. I will personally make sure to go through them and resolve all your queries. Cool? Last but not the least is number 3. Make sure you are sitting with your Aadhaar card, with your 10th and 12th mark sheets and other important documents, because you will need them while filling the form. And now, let's get started. But before that, don't forget to subscribe to the channel and also join the Telegram group. And now, let's get started. Alright, so people, the first thing you have to do is visit the official website of NTA, which is jemain.nta.nic.in. जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ब्लू कलर के एक बार में बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट होके दिख जाएगा JEE Main 2023 Session 1 application. You will click on it and that will direct you to a page जहाँ पे इसी सेम चीज का लिंक रखा होगा. That link will be clickable. उस लिंक को क्लिक करके आप इस पेज पे पहुंचेंगे, which you can see right now on the screen. इस पेज में पहुंच के आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है. सो क्लिक हियर. ऑलराइट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. यहां पे क्लिक करने के बाद इट विल टेक यू टू दिस पेज एंड ऑन दिस पेज यू हैव समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज इंफॉर्मेशन बुलेटिन. ओके, आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हो. सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारे पॉइंट्स, सारे कंडीशंस, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो इस पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन से क्लियर हो जाएंगे. जैसे लेट्स जस्ट गो थ्रू इट क्विकली. कुछ मेजर हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं तो मैं आपको बताती हूँ. जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कोर्सेज दिए हुए हैं, कैटेगरी के बारे में बात की हुई है, फी पर सेशन दिया हुआ है. Also here you can see कि यहाँ पे लिखा है in the first session only session 1 will be visible and candidates can opt for that. Session 2 will be visible in the next session and candidates can opt for that session whenever that comes. All right? तो अभी फिलहाल हमको फॉर्म में सिर्फ सेशन 1 का ऑप्शन मिलेगा. ठीक है. Also एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है फोटोग्राफ के बारे में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. कैन यू सी दिस? लेट्स क्विकली टेक अ लुक. यहाँ पे लिखा है रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालनी है. इट विल बी ईदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस विजिबल. With 80% face visible, your face should be without mask. Obviously, mask पहन के फोटो नहीं खिंचवानी है. And your ears should be visible. Okay, your ears should be visible against white background. It should be in JPG format, clearly legible, मतलब समझ आना चाहिए तमीज से, and between 10 KB to 200 KB. So this is a very very important condition which is written over here. ये नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ अपलोड करने के टाइम पे पंगे आ रहे हैं तो पहले ही यार पढ़ लो, इसको समझ लो और इस हिसाब से अपनी फोटो रेडी करके रख लो. इट शुड बी वेरी रीसेंट फोटोग्राफ. मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने से पुरानी फोटोग्राफ मत लेना. ठीक है, आते हैं आगे. कुछ और चीजें जो मेरे ख्याल से आपको पता होनी चाहिए एंड यू मस्ट गो थ्रू इट इज दिस. पासवर्ड. अगर पासवर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है. इट विल बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग. इट शुड हैव 1 अपर केस अल्फाबेट, 1 लोअर केस, एटलीस्ट 1 लोअर केस अल्फाबेट, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर. जनरली यही कंडीशंस होती हैं. तो मैं ये सलाह देती हूँ बच्चों को कि यार सपोज मेरा नाम जैसे भूमिका है तो आई विल स्टार्ट विथ अ बी. I will start with a B capital
then I'll write HOOMIKA small, then @ or hash sign, and then any 3 digits. So let's say 765. तो इस तरीके का पासवर्ड आपको जनरेट करना है जो आपको याद रहे. क्यों? क्योंकि यहां पर एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है कि यू कैन लॉग इन later on. यहाँ पे देखो लिखा है, you can log in directly with the respective system generated application number and created password. तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे तो एक एप्लीकेशन नंबर आपको असाइन होगा, वो आपको ध्यान रखना है, वो नोट डाउन करके आपको रख लेना है. यू हैव टू सेव इट वेरी प्रॉपरली एंड केयरफुली, एंड दिस पासवर्ड दैट यू योरसेल्फ हैव जनरेटेड फॉर योरसेल्फ, वो आपको लगेगा. तो पासवर्ड ऐसा बनाओ जो यार याद रख सको. ठीक है, समझ में आया? और एप्लीकेशन नंबर तो आपको ऑब्वियसली असाइन किया जाएगा वंस यू आर डन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है भाई, तो ये हम समझ चुके हैं. ये पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन के एंड पे जब आप आओगे तो दिस इज व्हाट यू विल सी. नाउ बिफोर यू क्लिक हियर टू प्रोसीड, आपको यहां पर टिक मारना है. ओके, दिस ब्लैंक बॉक्स दैट यू आर एबल टू सी, यू हैव टू टिक हियर एंड देन प्रेस ऑन क्लिक हियर टू प्रोसीड. इसके बाद आपके पास आएगा ये पेज. This page is all about personal details, your personal details. This is critical information, people. You have to enter it with utmost vigilance, sharpness and concentration. यहाँ पर जो आपका नाम लिखा गया है, यहाँ पर जो कैंडिडेट नेम लिखा हुआ है, I know you know your name, I mean there is no doubt about it, but आपको एक बार देखना है कि यार आपने 10th की मार्कशीट पे जो नाम लिखा है ना, exactly वही चीज आपको यहाँ लिखनी है. इट माइट साउंड सिली कि मैम मेरा नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा, जो 10th की मार्कशीट पे वही तो यहीं लिखूंगा. बट जस्ट चेक वंस. कई बार हमारे 2 ई 1 ओ अल्फाबेट्स में ऊपर नीचे कंफ्यूजन हो जाती है. जस्ट मेक श्योर कि 10th की मार्कशीट से अलग कुछ भी मत लिख देना. इसके बाद रेगुलर चीजें हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एटसेट्रा एटसेट्रा. टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज समथिंग इंपॉर्टेंट. देखो यार, जब आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अलग अलग आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स आप डाल सकते हो. मतलब आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, स्कूल आईडी कार्ड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा. अब यहां पर ना बेस्ट होता है आधार कार्ड डाल दो, क्योंकि वो सबके पास होता है. इट इज रिकॉग्नाइजेबल थ्रू आउट, राइट? तो बिकॉज दिस ड्रॉप डाउन विल नॉट हैव आधार कार्ड ऑप्शन, you will realize this drop down list will not have आधार कार्ड का ऑप्शन, पर एंड में लिखा होता है कि यार any other government verified card with photograph, something like that, any other government verified card with photograph. उस पे क्लिक कर देना और नीचे आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना. आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना. इन केस यू वांट टू गो फॉर एनी अदर कार्ड, दैट्स फाइन. आपको वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा, स्कूल आईडी कार्ड मिल जाएगा, एटसेट्रा. पर आधार कार्ड उस ड्रॉप डाउन में नहीं मिलेगा. उसके लिए आपको एनी अदर गवर्नमेंट वेरीफाइड कार्ड विथ फोटोग्राफ पे क्लिक करना पड़ेगा एंड देन यू कैन एंटर योर आधार कार्ड नंबर. ठीक है, तो आई एम सजेस्टिंग दिस कि यू यूज योर आधार कार्ड. ऑल राइट, रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आई थिंक यू कैन वेरी इजिली फिल. यहां पर अपने को यार एड्रेस के बारे में डिटेल्स भरनी है, तो बहुत ध्यान से आपका पिन कोड हो गया, हाउस नंबर हो गया, व्हाटएवर लैंडमार्क यू वांट टू फिल, बड़े ध्यान से भरना. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, which is your phone number and email address. So this is extremely important and this is also extremely important. 2-3 बार चेक कर लेना कि आपने ईमेल आईडी और फोन नंबर सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी, आपका फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन नंबर आएगा, XYZ, everything is going to come here. You will be notified about everything here on your mail or on your phone. तो अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस प्लीज बहुत ध्यान से चेक कर लेना. ऑल राइट, ऑप्शनल फोन नंबर भी आप भर सकते हो. आफ्टर दैट हियर ऑल्सो अगेन समथिंग वेरी रेगुलर, एड्रेस के बारे में बात की गई है एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पेज. ये है वो जिसके कारण मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से पासवर्ड जनरेट करने की कंडीशंस पढ़वाई थी कि पासवर्ड यार आपका 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, एटलीस्ट एक अपर केस लेटर, एटलीस्ट एक लोअर केस लेटर, एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए. तो जनरली हम यही करते हैं कि यार कैपिटल लेटर से अपना नाम स्टार्ट किया, फिर स्मॉल से पूरा नाम कंप्लीट किया, फिर @ एंड देन एनी 2-3 डिजिट्स, ताकि सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जाए और पासवर्ड इजी टू रिमेंबर भी बन जाए. Okay, so the moment you enter the password here on this page, please make sure you are simultaneously writing it somewhere where you know it is safely kept. अपने फोन के नोट्स ऐप में लिख लो या कहीं लिख लो जहां पर आप कहीं चिपका लो लिख के. Basically, it should be handy and you should be knowing what you have kept as your password.
ऑलराइट, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्वियसली यू कैन सी सिक्योरिटी पिन आपको एंटर करना है। अगर किसी रीजन से आपको ये सिक्योरिटी पिन बहुत अच्छे से रीडेबल नहीं है, कई बार ऐसा होता है कोई एक आध लेटर या एक आध नंबर ना बड़े क्लियरली दिखता नहीं है, तो आप प्लीज इस वाले आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास एक नया सिक्योरिटी पिन जनरेट हो जाए जो आपको क्लियरली दिखे और फिर आप उसको सही तरीके से यहाँ पर एंटर कर सको। ठीक है, कूल है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। यहां पर सबमिट प्रेस करने के बाद, क्योंकि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स सारी की सारी डाल चुके हो, ये सबमिट प्रेस करने के बाद आपके पास आएगा एक ऑप्शन विच इज रिव्यू। रिव्यू का ऑप्शन आएगा और बच्चों प्लीज इस रिव्यू वाले जो पेज खुलेगा आपके पास, उसमें आपने जो भी डिटेल्स डाली हैं वो ऑलरेडी एंटर्ड होके आपके सामने आएंगी। प्लीज check them once, check them twice, check them thrice. All right, you have to review them very carefully, and after that once you are through कि हाँ यार ये भी सही है, ये भी सही है, सब कुछ सही है, तो यहाँ पर अपने टिक कर दिया हर जगह because everything is correct, everything is fine, and then you have to press on what? I agree and then move on to submit and send OTP. लेकिन अगर कहीं कुछ गलती हुई है, सपोज नाम में गलती हो गई, जेंडर में, फादर्स नेम, एड्रेस में, मदर्स नेम या मोबाइल नंबर में या डेट ऑफ बर्थ में या ईमेल आईडी में, इन सब में कहीं भी कोई गलती हो गई, देन प्लीज प्रेस ऑन एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म सो यू कैन एडिट इट, मेक द नेसेसरी चेंजेस। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, दे हैव गिवन दैट ऑप्शन। देन कम एंड प्रेस ऑन सबमिट एंड सेंड OTP। अब ये जो OTP आपके पास आएगा, ये आपके उसी फोन नंबर पे आएगा जो आपने पहले एंटर किया था, एंड दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल एंटरिंग योर फोन नंबर, क्योंकि वहीं से OTP उठा के आप नेक्स्ट स्टेप में डालोगे तो आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। ठीक है, एंड नाउ वंस you've pressed on submit and send OTP, this is the page that it will direct you to। यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक ब्लैंक स्पेस दिख रही है to enter the OTP which has come on your phone। तो within a few minutes you should get it ideally। आपको यहाँ पे वो OTP एंटर करना है, और अगर आपको नहीं आता then you have to press on resend OTP। All right, after that you will click here which is submit registration form। You have to click here which is submit registration form। Submit करने के बाद this is what you will get। तो registration form submit हो चुका है, but there are 3 stages। ये bulletin board वाली information में लिखा था, there are 3 stages। You have to work upon the registration form, then the application form and then the fee payment। तो पहला स्टेप हो चुका है, यहाँ लिखा है completed, स्टेटस दिखा रहा है ये पेज आपको, whereas the other 2 steps are incomplete। यहाँ पर एक और चीज आपको दिख रही है which is your application form। Of course it has been hidden here, but this is what you have to take a note of। So note down your application form। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका application number और आपका पासवर्ड, ये दोनों चीजें आपको आगे जाके लॉग इन करने में यूज आएंगी। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर सामने आ चुका है, note it down and keep it safely। Now complete application form। So you know registration form step 1 हो चुका है, अब हम step 2 पे चल रहे हैं which is complete application form। Click on it and this is where it will bring you to। This page says कि भाई contact details आप डाल चुके हो, लेकिन personal details, आधार details etc ये अभी भी enter करना बचा है। So one by one we will fill each and everything। Got it? So contact details हो गया, we have to now move on to personal details। So come and click here। Click here on personal details and this is the page that it will take you to। अब यहाँ पर personal details में आपको जो भी enter करना है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पहले already अपना registration form submit करते वक्त enter कर चुके थे, तो वो चीजें खुद ही अपने आप वहां से copy paste होके यहाँ पे enter already पड़ी हुई होंगी। ठीक है, already काफी कुछ enter किया हुआ पड़ा हुआ होगा, कुछ चीजें होंगी जो आपको अलग से एंटर करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो आप लिखोगे इंडियन। फिर आएगा आपका स्टेट ऑफ रेसिडेंस क्या है। अब ये यार देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आप अगर किसी स्टेट को अपना स्टेट ऑफ रेसिडेंस बोल रहे हो या फिर यहाँ पे लिख रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, तो आगे जाके फॉर्म में जो सेंटर्स आपको अवेलेबल दिखाएगा वो उसी स्टेट के सेंटर्स दिखाएगा। तो ध्यान रखना, आप उस स्टेट को अपना स्टेट ऑफ रेसिडेंस मार्क करो।
जहां के सेंटर में जाके एग्जाम देना आपके लिए कन्वीनियंट है. सो दिस इज व्हाई दिस स्टेट ऑफ रेसिडेंस बिकम्स extremely important. After this, I guess everything else is pretty regular, pretty standard. Mode of preparation में आप online, offline, accordingly options will be there. You can select accordingly. And medium of schooling, English, Hindi, whatever, ये भी आप select कर सकते हो. और हाँ, आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, which is enter security pin. तो बार बार ये लोग security pin ज़रूर आपसे डलवा रहे हैं. तो नीचे, I think ये नीचे block हो गया. यहाँ पर ऐसा कुछ दिया होगा आपका security pin. ओके और ये आपको इस ब्लॉक में एंटर करना है करेक्टली. ओके अगेन इफ देर इज एनी डिजिट और एनी लेटर जो आपको विजिबल नहीं है अच्छे से, तो प्लीज उस आइकन को, वो भी बना होगा यहाँ पे, उस आइकन को क्लिक करके आप एक नया सिक्योरिटी पिन जनरेट कर देना ताकि आप सही तरीके से एंटर करो, सो दैट इट टेक्स यू टू द नेक्स्ट पेज विच इज दिस वन. ओके अगेन आपको दिख रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा है. ये ऑलरेडी सारी चीजें हैं जो आप पहले एंटर कर चुके थे, तो अब यहाँ पे वो खुद ही कॉपी पेस्ट होके पड़ी होंगी, ये पड़ी होंगी. पर यहाँ पर आगे कुछ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है. ये लिखा हुआ है कि भाई यू आर डन विथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड पर्सनल डिटेल्स एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू आधार डिटेल्स. ये बेसिकली आधार डिटेल्स का पेज है, इसीलिए ये चीजें ऑलरेडी यहाँ पे एंटर्ड हैं. नाउ देयर आर 3 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आई वॉलंटरली अग्री टू शेयर माई आधार नंबर. ठीक है, मैं अपनी इच्छा से अपना आधार नंबर शेयर कर रहा हूं और मुझे पता है कि मेरा ये आधार नंबर और आधार कार्ड डिटेल्स विल बी यूज्ड टू मैच माय इंफॉर्मेशन विथ माय 10th क्लास मार्कशीट. जो भी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखी है वो 10th क्लास मार्कशीट से मैच होगी, उसके लिए आधार कार्ड नंबर यूज किया जाएगा, ये मुझे पता है और मैं वॉलंटरली अपना आधार कार्ड नंबर शेयर कर रहा हूँ. ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है. दूसरा ऑप्शन कह रहा है माई इंफॉर्मेशन इन आधार कार्ड इज नॉट सेम एज दैट इन द एप्लीकेशन फॉर्म. और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाई मेरे को शेयर नहीं करना अपना आधार कार्ड नंबर. ओके सो आइडियली दिस इज द ऑप्शन दैट यू विल टिक एंड देन यू विल मूव अहेड. तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक और बार आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करने को बोला जाता है. आई गेस दैट ब्लॉक इज मिसिंग हियर, बट एक और बार आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करने बोला जाएगा, वो आप यहाँ पे करोगे. देन यू विल टिक हियर ऑन दिस ब्लैंक बॉक्स कि भाई आई कंफर्म दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव. अगेन यू विल हैव अ सिक्योरिटी पिन टू एंटर. ठीक है, एंड देन यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट page. Okay, so we are done with contact details, personal details, Aadhaar details. This is the page for exam and center details. अब यहाँ पे of course you can see कि you are applying for which exam, paper 1 of BE BTech or paper 2A for B Arc or paper 2B for B Planning, that means bachelor's in planning. तो basically यहाँ पर BTech के लिए हम पेपर देने वाले हैं, so this is what you have to tick. And now next is session of exam that you are applying for. तो यहाँ पर ऐसा कुछ session 1 and there will be a डब्बा. Okay, so you have to tick on this. थोड़े टाइम बाद आएगा सेशन 2 भी आ जाएगा, तो out of the 2 which one you want to select, that is your option. but फिलहाल मेरे ख्याल से फॉर्म में सिर्फ सेशन 1 का ऑप्शन वैलिड है, वहां पे लिखा हुआ है, तो सेशन 1 के डब्बे में you have to tick. After this बच्चे, the most important thing is these 4 things. These are your center choices. These are your center choices. ओके तो जैसे कि मैंने बोला था कि पहले अगर आप अपना स्टेट ऑफ रेसिडेंस कुछ भरते हैं तो उस अकॉर्डिंगली आपके पास चॉइसेस अवेलेबल होंगी टू सिलेक्ट द सेंटर. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी पहली प्रायोरिटी स्टेट की क्या है और उसके अंदर सिटी की क्या है, दूसरी प्रायोरिटी स्टेट एंड सिटी, तीसरी प्रायोरिटी स्टेट एंड सिटी, चौथी प्रायोरिटी स्टेट एंड सिटी. सो 4 choices you have to fill. After this you have your father's occupation, father's qualification, mother's occupation, mother's qualification, and then you have to enter the security pin here and press on save and next. इसके बाद आपका आएगा ये वाला पेज which is qualification details. तो एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स हो गई. नाउ क्वालिफिकेशन डिटेल्स. इसके लिए आपको अपनी 10th 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी और बहुत ही आराम से तसल्ली से चीजों को अपनी मार्कशीट से इस पर्टिकुलर फॉर्म में उतारना. ठीक है, हाईली फोकस्ड, हाईली अटेंटिव. यहाँ पर बड़ा ही आराम से आप ये भर लोगे, मतलब कुछ भी, देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, वेरी रेगुलर. बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब आपके पास क्वालिफाइंग एग्जाम वाला ड्रॉप डाउन आएगा ना, उस ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शंस होंगे, आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है. यू हैव टू, एंड दिस इज द लास्ट ऑप्शन दैट विल बी गिवन आउट ऑफ द 3 ऑप्शंस दैट विल बी सीन.
3 ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में आएंगे, उसमें तीसरा वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो ये होगा जो आपको सिलेक्ट करना है। और दूसरी चीज, अगर आपसे स्कूल या कॉलेज का पिन कोड पूछा गया है तो दिस डजंट मीन स्कूल का पिन कोड, इट मीन्स जिस जगह पे वो स्कूल या कॉलेज है उस जगह का पिन कोड, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड फॉर दैट। इसके बाद आपके पास फिर से सिक्योरिटी पिन एंटर करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। ऑलराइट, okay, so this is the highlighting part of this form. Moving ahead is this page. मतलब कि अब आ गई आपकी additional details, मतलब almost we are about to get through with this form. Additional details में are you a twin, yes or a no, and then again you enter the security pin, save and next. This is थोड़ा सा important. क्यों important? क्योंकि यहाँ पे emergency contact details of parent या guardian पूछा गया है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपने गार्जियन का या पेरेंट का दोगे। ओके, तो ऑफ पेरेंट और गार्जियन एंड दिस ऑल्सो ऑफ पेरेंट और गार्जियन, ठीक है, अपना मत लिख देना यहाँ पे, और बड़े ध्यान से आराम से लिखना, क्योंकि यहां तो चलो आपने सिक्योरिटी पिन एंटर किया और आपने जैसी गेट ओटीपी दबाया ना, उसके बाद आपके पास 2 ओटीपी आएंगे। एक तो जो आपने ईमेल एड्रेस एंटर किया है वहां पे आएगा, और एक जो फोन नंबर आपने अपने पेरेंट का एंटर किया है वहां पे आएगा, ठीक है। और गेट ओटीपी प्रेस करने के बाद जो पेज खुलेगा वहां पे आपको ये दोनों ओटीपीज डालने पड़ेंगे, एक ईमेल वाला जो आपके पेरेंट के ईमेल आईडी पे आया है, और दूसरा फोन नंबर वाला जो आपके पेरेंट के फोन नंबर पे आया है। उनको डालने के बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट दबाओगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा, which is of document upload. Now this page is demanding from you to upload the photograph and your scanned signature. Photograph कैसी होनी चाहिए, क्या conditions हैं, all of that I have already briefed you about while reading the information bulletin right in the beginning. Even signature upload आपको अच्छे से तमीज से स्कैन करके फिर करना है। यहाँ पर हो सकता है आपको अपना सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए भी कहा जाए, सो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक दैट इनटू एक्शन। नाउ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद next option is final submit, but before you go on to final submit they will ask you to review. This is the review page and this is something which is very 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 important, क्योंकि final submit के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ fee submission करना होता है, and that is the end of all, right? So before that please carefully review whatever is written in this page, okay, कि आपने सारे डिटेल्स सही एंटर किए हैं। आफ्टर दिस योर फाइनल सबमिट इज गोइंग टू टेक यू टू दिस पेज, ठीक है। मतलब कि आपको यहां पर आई अग्री क्लिक करना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशंस आर करेक्ट इज व्हाट यू हैव टू एंश्योर, एंड देन इट विल टेक यू टू फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये एक्टिवेट हो जाएगा बेसिकली, और फिर आप क्लिक कर सकते हो इस पे, जिसके बाद आप फीस भर पाओगे। फीस भरने के बाद कुछ नहीं होगा, फीस भरने के बाद यू विल गेट दिस पेज, मतलब कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, फी पेमेंट कंप्लीट। तो रिमेंबर इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि यार एक स्टेप हमने कंप्लीट किया, रजिस्ट्रेशन का, अभी 2 स्टेप बचे हैं। सो दिस इज द पेज विच नाउ शोज द करंट स्टेटस दैट ऑल द 3 स्टेप्स हैव बीन completed. Step 1, Step 2, Step 3. फीस भी आपने पे कर दी and this is your complete application form. This is where you'll click next. तो इसका जो confirmation है, आपका application number हो गया, everything, all the details that you will require are going to come on your phone as well as on your email ID जो आपने भरी थी. Alright, so this was about filling the registration form for the upcoming JEE Main 2023 exam, people. If still there is any doubt, then please feel free to post that in the comments below. I would love to go through your questions and help you resolve your doubts, your confusions, your queries. On this note, it's me, Bhumika, signing off. If you have not yet subscribed to the channel, make sure you do that. And if you found this video useful, make sure you hit the like button. All right? Thank you so much, people. I'm going to see you super soon again. Bye-bye. Take care.